Hello student, good morning to all of you and once again welcome to class 11 accountancy. Beta our chapter is going on journal entry and in this chapter already we have completed meaning of journal, rule of journal entry as well as some numerical question. And in this lecture also we are going to solve some numerical question based on the Arya publication book class 11 and writer D.K. Goyal. So we have one question. Enter the following transactions in the journal of Siaram and Sons. First of all, we will read our question and then we will solve. Siaram and Sons started business with cash 50,000. Purchase goods for cash, purchase goods from Subhas, purchase furniture for cash, paid cash to Subhas, purchase goods from Ravi for cash, purchase goods from Ravi, bought machinery for cash and paid rent. These are our some example of journal entry. Now how we will post all this, how we will record. Post means ledger, record means journal. How we will record all these transactions in the book of the journal. So let's see, this is our format. First of all we will draw format. First column for date, second column for particular, next column for LF and next amount and then amount. Left hand side always debit, right hand side always credit. First of all we will write here journal of Siaram, journal of Siaram and Sons. You can see here we have to write all these transactions in the book of the journal of Siaram and Sons. So first of all we will write year in the column of date 2020, month Jan and we will write here डेट. ठीक है बेटा. अब बेटा एक बार न्यूमेरिकल्स तो हमने पढ़ लिया है. पहला हमारा ट्रांजेक्शन्स क्या था? फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज अवर Siaram and Sons started business with cash. So what will be the first transactions? Cash account debited to capital account. In date column we will write here Jan 1st, cash account debited to capital account, and in debit column we will write debit amount, and in credit column we will write credit amount. Cash account debited 50,000 to capital account means capital account credited 50,000. अब क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हो रहा है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल एज डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू सम रूल. ठीक है. इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, कैश इज अवर एसेट्स and if assets will increase it will be debited, if assets will be increase it will be debited, and capital, if capital will increase it will be credited. In this way you have to write. After writing the journal entry you have to write here narration, cash bought into the business by Siaram and Sons as capital, or in simple language you can write here business started with cash. This much narration will be enough. Business started with कैश, इट विल बी इनफ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका. जो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या होगा? तो सी हियर परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000. सो इन डेट कॉलम यू विल राइट डेट Jan 2nd and journal entry will be purchase account debited to cash account, and narration goods purchased for cash. In debit column we will write here debit amount and credit column you will write here credit amount. दोनों साइड सेम अमाउंट ही आएगी. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि गुड्स कभी भी परचेज होगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा. एंड इफ इट इज अ कैश परचेज देन टू कैश, एंड इफ इट इज अ क्रेडिट परचेज तो नेम ऑफ क्रेडिटर्स. नेक्स्ट एंट्री विल बी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष. इट इज अ क्रेडिट परचेज. तो बेटा जब ये क्रेडिट परचेज है तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष. अब हमने कैश में तो कुछ दिया नहीं है. देन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष, एंड इन अमाउंट कॉलम 12,000 इन डेबिट कॉलम एंड 12,000 इन क्रेडिट कॉलम. क्लियर? परचेज अकाउंट डेबिटेड, सी हियर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष. क्लियर? नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष. देन फिफ्थ को परचेज फर्नीचर फॉर कैश. बेटा ये हमारी एसेट्स है, एंड देन एसेट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एसेट्स अगर हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश देन फर्नीचर एसेट्स हमेशा क्या हो जाएगी? डेबिट. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू
cash account. You can see here what will be the journal entry. Furniture account debited to cash account. Then see here, furniture account debited to cash account, and after that narration date column you will write here date, and after passing the journal entry you will write furniture purchase for cash 6000 and 6000. डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट. बेटा नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एंड देन आफ्टर जो हमारी नरेशन था वो था पेड कैश पेड टू सुभाष. एक बार क्वेश्चन में वापस से देख लेते हैं. नेक्स्ट है 10th को पेड कैश टू सुभाष. बेटा हमने किसको पे किया है कैश? सुभाष को. सो सुभाष विल बी डेबिटेड. whom we have paid? Subhas. So Subhas debited to cash account. Subhas debited to cash account. See here how we will pass journal entry. Subhas debited to cash account. Subhas debited to cash account. Clear? Subhas debited to cash account, and in amount column we will write here amount. Next है बेटा यहाँ से ही देख लो, एक बार नरेशन से हम देख लेते हैं. वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है तो नरेशन में देख लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है गुड्स परचेज फॉर कैश. अगेन सेम एंट्री रिपीट हो रही है. डेट 16 परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सी हियर वी कैन सी आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश. बेटा it is a cash purchase. if it will be only purchase goods from Ravi then it will be credit purchase. लेकिन अभी फिलहाल for cash clear it is given it is a cash purchase, so entry will be purchase account debited to cash account. Purchase goods from Ravi, this one is credit purchase. Ravi का name given है but it is not clear it is a cash or credit, so it will be always credit purchase. दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? यहाँ पर भी हमने रवि से गुड्स खरीदा है but for cash clear it is given it is a cash purchase, so we don't know Ravi, we know only money and money, we don't know Ravi. Here purchase goods from Ravi and we want money from Ravi, so we have to write the name of Ravi. हमें money से मतलब है और हमें रवि से money लेना है, so because of that we will write the name of Ravi. 17 rupees 5000 goods purchased from Ravi. So see here in date column we will write date Jan 17, purchase account debited to Ravi. See here in this transaction purchase account debited to cash account, cash purchase, and it is a credit purchase, so we will write the name of creditor. Purchase account debited to Ravi. Clear? Purchase account debited to Ravi. And in amount column we will write amount 5000 debit side and 5000 credit side. Machinery account, बेटा next है हमारा machinery purchase for cash. So same, furniture purchase for cash means furniture account debited to cash account. So machinery purchase for cash means machinery account debited to cash account. Machinery account debited to cash account. Clear? Machinery account debited to cash account. Next है 27 को रेंट पेड. रेंट पेड एक्सपेंसेस है. अगर एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगी एंड एसेट्स हम पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगी तो हमेशा क्या हो जाएगी? डेबिट, सॉरी क्रेडिट. एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हमेशा क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट ही होगी. सो देखो यहाँ पर रेंट पेड मीन्स रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट होगा. एंड देन एसेट्स हमारी, कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगी तो हमेशा क्रेडिट होगी और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हमेशा डेबिट होंगी. बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, अगर आपको रूल नहीं याद है. वैसे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल हैं एज वेल एज रूल ऑफ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. अगर आपको एक बार रूल याद नहीं हो रहे हैं तो मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशन समझाए थे, एग्जाम्पल गिवन थे, वो आप सामने रख लो एंड देन ओनली यू पास द जर्नल एंट्री. Then only you are going to understand, otherwise you are not going to understand this chapter at all. So rent paid means rent account debited to cash account. Wages paid, wages account debited to cash account. Salary paid, salary account debited to cash account. Expenses always be debited. Debit all the expenses and losses, credit all the income and gains.
So we have passed the journal entry. Beta, what you have to do? You have completed this question? No. After writing all the amount, all the transactions, and then you will draw one journal. In this way you will draw one line. ठीक है बेटा, एक आप लास्ट में क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, and in total column you will write total, and then total of debit amount and total of credit amount, and only in this way you will complete your question. बेटा यहाँ पर देखो, सबसे बाद में जब आप सारे एंट्री पास कर दोगे, you will draw this line, and then you will write here total in particular column, and in debit के कॉलम में डेबिट का टोटल, एंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का टोटल, और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन. अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा आपको बेटर क्लियर होगा. अगेन वी हैव वन क्वेश्चन. बेटा यहाँ पर सोल्ड, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स. तो किसकी बुक में हमें लिखना है? इन द बुक्स ऑफ यशराज एंड सन्स. सो वी विल राइट हियर जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स. आइदर यू कैन राइट ऑल्सो हियर journal entry in the books of Yasraj and Sons. Clear? So let's start. What is the information given in our question? 2020 April 7th sold goods for cash. But the last questions में we have learned about, in last question we have learned about purchase, and in this question we are going to learn about sales. Purchase account always debited and sales account always credited. So sold goods for cash, cash account debited to sales account. ठीक है. कैश आ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, डेबिट होगा, एंड सेल्स हमारी इनकम है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, और इनकम क्या होती है हमेशा? क्रेडिट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है अगर इंक्रीज हो रही है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू महेश, क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज टू होम, वी आर गेटिंग कैश? नो. सो वी विल राइट द नेम ऑफ महेश, बिकॉज महेश इज अवर डेटर एंड डेटर विल बी डेबिटेड. तो महेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट we will write narration sold goods to Mahesh on credit. Next है received cash from Mahesh. Received, beta you can see here same way, in debit column you have to write debit amount, and in credit column you will write credit amount, but in this way you can see here our question. Next, received cash from Mahesh, we have received cash. So कैश ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, एंड फ्रॉम हुम? महेश. सो महेश विल बी क्रेडिटेड. तो कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और हमारी डेटर्स, महेश क्या है? हमारे डेटर्स हैं, एंड डेटर्स डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट. तो बेटा एक बार थोड़ा सा आपको रूल को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं. अगर आपको रूल समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उन एग्जाम्पल को आप सामने रख लो और फटाफट आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी. सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश. अगर हो जाएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, राहुल कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल. कैश रिसीव्ड फ्रॉम नेहा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू नेहा. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मीरा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मीरा. हमेशा रिसीव्ड होगा तो कैश डेबिट होगा, एंड जिस पर्सन से रिसीव्ड होगा वो क्रेडिट होगा. सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, whom we have sold? सुरेश को. बट बेटा ये हमारी कैश में सेल है, सो वी डोंट नो सुरेश, वी नो ओनली मनी. इन डेट कॉलम वी विल राइट डेट अप्रैल 18, वी हैव रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम वी विल राइट 12,600. सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश. बेटा ये हमारी कैश की परचेज थी बिकॉज कैश इज गिवन. क्लियर? बट हेयर दिस वन इज क्रेडिट परचेज बिकॉज we did not receive any cash. So Suresh account debited to sales account. Cash purchase, cash account debited to sales account, and credit purchase, Suresh account debited to sales account. Next है withdraw cash from office for personal use. Whatever withdrawn by businessman from the business known as the drawing for personal use. अगर बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है वो हमारी ड्राइंग कहलाती है. तो बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया कैश
फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, सो ड्राइंग है एंड ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। तो अगर उसने कैश निकाला है तो टू कैश, और अगर उसने गुड्स निकाला है देन टू स्टॉक, या सॉरी टू परचेज। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इन अमाउंट कॉलम you will write here 2500. Paid wages, again wages our expenses, so expenses will be debit and what we are paying, assets cash. So wages account debited to cash account. बेटा अगर सैलरी पेड होता तो क्या होता, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अगेन paid salary to Gopal, we don't know Gopal or anyone, we know only salary. Salary is our expenses, so we will write here salary account debited to cash account. See here beta, we have to write salary account debited to cash account, salary account debited to cash account. Next है रिसीव्ड कमीशन, इनकम आ गया. अभी तक हमने एक्सपेंसेस में पढ़ा था, इनकम हमारी आ गई. कमीशन की फॉर्म में बेटा हमें क्या मिलेगा, कैश. सो कैश विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट. रिसीव्ड डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट. सॉरी डिस्काउंट नहीं, कैश हमेशा, डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं मिलती है, ये अप्लीकेबल नहीं होगा. दैट विल बी अप्लीकेबल इन डिफरेंट फॉर्म. रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. तो हमेशा इनकम क्रेडिट होगी हम, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे बेटा, डेबिट होंगे. तो सी हियर व्हाट विल द जनरल एंट्री, रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड. नो नीड टू राइट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन. अगर कोई भी चीज़ डेबिट है तो वो एक्सपेंसेस है, अगर क्रेडिट है तो वो हमारी इनकम है. एंड अगेन व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस and after writing all the journal entries, what you have to do, and after writing all the journal entries we have to draw in this line, ठीक है. and in particular column you have to write total, and then in debit column you have to write the total जितनी भी एंट्री है उनका टोटल, and in credit के कॉलम में जितना भी क्रेडिट का टोटल है वो लिखना है. and it will be always equal, debit always equal to be क्रेडिट. बेटा अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, दैट्स मीन देयर इज सम प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, यू हैव ओमिटेड सम मिस्टेक वाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल एंट्री. ये टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आता है दैट्स मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था. थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा. 1 or 2 time it will be painful for you, maybe you are not going to understand, but when you will solve more question, 101% you are going to get concept, because you have to do some effort to learn accountancy. Now again we have one question, record the following transactions in the journal of Vishal Brothers. So you have to draw format, one format, date, particular, LF, debit amount and credit amount, in this way. ठीक है, you have to draw format and then you have to pass the journal entry. ठीक है. First in date column 2018 May 1st commence business with cash, either commence business with cash or business started with cash, both are the same entry. See here, cash account debited to capital account, 5 lakh debit के column में, 5 lakh credit column. And after writing that one you have to write the narration. After passing journal entry you have to write narration. Amount bought in by Vishal Brothers as capital, or you can simply write business started with cash by Vishal Brothers. ठीक है, it will be enough. Second है goods purchased from Mohan for cash, 50,000 goods purchased from Mohan, but it is a cash purchase because clear it is given in your question. So what will be the journal entry, purchase account debited, journal entry will be purchase account debited to cash account, and narration will be goods purchased from Mohan. In date column you will write May 2nd, and in amount column you will write here amount. Clear? Next our question, goods purchased from Ajay, this one is credit purchase. So what will be the journal entry, Ajay, purchase account debited to Ajay.
अगर होता गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, देन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन. गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुनील. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गुड्स परचेज, गुड्स रिटर्न टू अजय. हमने क्या किया, अजय को हमने गुड्स रिटर्न कर लिया. बेटा व्हेन वी हैव परचेज, तो व्हाट वी हैव पास एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय. ठीक है, अब हमने किसको गुड्स रिटर्न किया, अजय को. सो अजय विल बी डेबिटेड. रिसीवर कौन है, अजय है, तो अजय डेबिटेड टू परचेज नहीं होगा यहाँ पर, परचेज रिटर्न. इफ गुड्स विल बी रिटर्न देन न्यू अकाउंट विल बी ओपन, परचेज रिटर्न अकाउंट. अगर सेल वापस होगी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन होगा, परचेज वापस होगी तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा. तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, सी हियर, अजय डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अजय डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट. ठीक है, इन डेट कॉलम डेट, अमाउंट के कॉलम में हमने अमाउंट मेंशन कर दिया. क्लियर? बेटा यहाँ पर देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, परचेज एक्सपेंसेस है डेबिट हो गया, अजय क्रेडिटर्स है लाइबिलिटीज है क्रेडिट हो गए. व्हेन वी हैव रिटर्न गुड्स टू अजय, ठीक है, यानी कि लाइबिलिटीज हमारी कम हो गई, हमने माल वापस कर दिया, हमें कुछ कम पैसे देने होंगे तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी. लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमेशा क्या होगी, डेबिट. परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस रिटर्न की वजह से एक्सपेंसेस भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा, अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. क्लियर? एंड आफ्टर दैट वी विल राइट हियर नरेशन गुड्स रिटर्न टू अजय, सिंपल सा. नेक्स्ट एंट्री मे 8 सोल्ड गुड्स टू रवि, राजीव. ठीक है, सो राजीव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड सेम वी विल राइट हियर नरेशन. देखो एक बार हम वापस से क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है. सोल्ड गुड्स टू राजीव, सो जनरल एंट्री विल बी राजीव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. लिखा होता है सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड एंड परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड. राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स. बेटा सेल्स वापस आई, दैट्स मीन इट इज अ सेल्स रिटर्न. तो वापस से आप समझ लो, व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू राजीव वी पास एंट्री राजीव डेबिटेड टू सेल्स. अब राजीव ने माल वापस कर दिया तो हमारे पास क्या वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू फ्रॉम हुम, राजीव. ठीक है, देख लेते हैं हमने क्वेश्चंस में सोल्यूशन में किस तरीके से पास किया है. तो सी हेयर, गुड्स सोल्ड टू राजीव में राजीव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, 40,000 एंड गुड्स रिटर्न बाय राजीव 10%. तो 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000 गुड्स रिटर्न बाय राजीव. सो लेट्स सी हाउ वी विल पास एंट्री. सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू राजीव. वैसे याद रखना सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, बट रूल के अकॉर्डिंग क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों ये क्रेडिट हो रहा है. तो देखो यहाँ पर सेल्स हमारी क्या है, इनकम. इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट. बट जब सेल्स वापस आ जाएगी इसका मतलब इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस. एंड इफ इनकम विल बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी debited. If income will decrease it will be debited. If income will be increase it will be credited, and if income will decrease it will be debited according to rule. बेटा मैं बार बार समझा रही हूँ, before doing this journal entry you have to write rules of debit and credit. you have to learn. अगर लर्न नहीं हुए तो सामने एक पेज पर कॉपी में लिख लेना and then you will solve this journal entry. And after writing this one, narration, goods returned by Rajiv, it will be enough. goods returned by Rajiv. अगेन समझ लो, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा, बिकॉज सेल्स रिटर्न की वजह से हमारी इनकम रिड्यूस हो रही है, सेल्स हमारी रिड्यूस हो रही है, सो इट विल बी डेबिटेड. एंड टू राजीव, राजीव इज अवर डेटर. डेटर्स हमारी क्या है, एसेट्स. राजीव से हमें पैसा लेना था, अब हमें कम पैसा मिलेगा तो राजीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट.
सेल्स रिटर्न, माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न फ्रॉम होम टू राजीव. It will take time. After 3 or 4 question, it will be learned on your finger. Easily you will able to solve all these question. 2-3 बार करने के बाद आपकी उंगलियों में रट जाएंगे और फटाफट आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. एंड अगेन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर राइटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन. इट इज़ अ कंपल्सरी. यू हैव टू राइट टोटल, एंड देन इन डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट, एंड इन क्रेडिट कॉलम क्रेडिट का टोटल लिखना है. एंड यू हैव टू मैच 7,19,000 एंड 7,19,000. अगर ये टोटल इक्वल नहीं है, दैट्स मीन 100% यू हैव ओमिटेड मिस्टेक. आई होप बेटा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड. हो सकता है थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो, फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही है, इमीडिएटली यू कांट आस्क डाउट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी. क्लियर? And do this question again and again. And first you will learn you have to learn rule of debit and credit, personal approach, personal, real and nominal, as well as modern approach. अगर आपको दोनों approaches अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो at least modern approach, American approach you must learn, then only you will able to solve this question. अकाउंटिंग इक्वेशंस को करना, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी. डेबिट और क्रेडिट की टी शेप अकाउंट की तो ज़रूर करना. 101% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा.